Alright, traders, a very warm welcome to you all. It's 18th May, Sunday, 2 p.m., and I, Aviral, welcome you all to the post market analysis, outlook, and expectations from the market for next week. So, in this video, we'll discuss that what can be some of the very crucial levels for the market for next week. How can you trade the market next week for Nifty and Bank Nifty, and we'll also sector wise we'll see that what is each and every sector is saying, whether it's bullish, whether it's bearish. We'll also discuss the OI data, that what is the OI data built week on week, and on Friday what is the change in OI, and we'll try to find out the bias for the next week in the OI data. All right. We'll also discuss if there are any events from globally or domestically, if there are any events which can impact the financial markets, Indian financial markets or global financial markets, right? So let's start the discussion. But even before starting the discussion, if you are someone new and watching this video for the first time, please do watch it till end. I guarantee you that you will not go empty handed and you will definitely learn something. And if you have not yet subscribed to the channel, please subscribe to the channel. It's really valuable information is being shared on this channel, right, regarding trading the markets, specifically Indian markets. And if you're someone old and watching our videos, and if you're someone from the Telegram group, please leave a like and leave a comment. And if you have not subscribed and still you have been watching from our videos from long time, please do subscribe to the channel. uh, I'll be leaving the link to my Telegram channel in the description box. So in that channel, right, we basically discuss everything in and out for trading. So basically, if you are a swing trader, positional trader, or intraday trader, right? So we share each and every insight, diving deep into the OI data analysis with combined with the global flows, global information. So everything you need from 0 to 100 in context of trading the Indian markets, you will get into in that Telegram group. So please do join that Telegram group. It's free of cost as of now, right? So let's start with the discussion. So before even going to the charts, there is nothing negative news coming from the global markets as of now, and from even domestic purpose, इंडिया से कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आई नहीं है. जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है दैट इज़ ऑन टेम्पररी पॉज, सीज फायर चल रहा है. सो दैट इज़ बीइंग टेकन एज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट्स. बट देर इज़ फ्रॉम ग्लोबल एंड फ्रॉम यूएस देर इज़ वन नेगेटिव न्यूज़. मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है, जो बैंक है मूडीज़ का, it has downgraded the US credit agency. And this is something which does not happen very regularly or on a very regular basis. This has happened because the US का piling debt है, which is 36 uh, trillion dollar. Moody's think कि वो refinance नहीं कर पाएंगे, and that's why they have degraded, they have reduced the rating for that credit system. So it means basically कि अगर US पे कुछ debt है, so it will be unable to repay that debt. I won't go into the technicals कि bond market क्या होता है, debt क्या होता है, right? But essentially this can impact the markets uh, in a negative way. But that depends that on Monday morning, the US market, the Japanese futures, how does it, take this news? If the market does not react, then this will be no event. But from my perspective, the markets might go slight negative in the opening session, but I think in the evening sessions, the global markets might do good if this news is not taken very seriously. It is a serious issue that US debt is piling, and it's a huge debt. It's a very serious issue. But रैशनलाइज चीज़ें होती कहाँ है स्टॉक मार्केट में, राइट? सो जितना हम सोचेंगे कि नेगेटिव हो रहा है, मार्केट उतना पॉजिटिव जाएगा. सो ज़बरदस्ती नेगेटिविटी लाने का कोई फ़ायदा है नहीं. ये सोच के कि ये न्यूज़ नेगेटिव है, आप शॉर्ट करने जाओगे तो हो सकता है इट माइट पॉसिबल कि आप खुद शॉर्ट हो जाओ. सो लेट्स लुक एट द चार्ट्स एंड लेट्स स्टडी द चार्ट्स. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को हुआ क्या. देन वील गो एंड डील विद द नेक्स्ट वीक एनालिसिस. देखो फ्राइडे, थर्सडे को एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आई इन द एंटिसिपेशन की आपकी निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी थी, और ये एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल रैली थी, राइट? एंड द मोमेंट हमने भी ये डिस्कस किया था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वी वर नॉट एबल टू कैच दिस मूव. हमने ये स्ट्रैटेजी डिसाइड की थी कि द मोमेंट 24,750 will cross, and we posted this in our telegram group, that the moment 24,750 will be crossed, we will take the shots. But up, think from your perspective, I'll go to 1 hour chart. यही होता है exactly with the retail money. What happens is
The big money, they keep the market sideways for a longer period of time, for long period of time, from 21st April to almost 12th May. It's almost more than a half of month. इतने टाइम तक मार्केट साइडवेज रहा, एंड उसके बाद एक ड्रॉप आया और यहाँ पे स्ट्रेट गैप अप. उसके बाद मार्केट वेंट अप फॉर वन डे, देन अगेन साइडवेज. तो दैट्स व्हाट द बिग मनी डज. आपको साइडवेज मार्केट की इतनी आदत डला देगा दैट यू विल स्टॉप एंटिसिपेटिंग कि एक ऐसी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है. एंड देन on a random day, whether it's on an expiry day or whether it's on a normal trading day, they will give such a short covering जो लोग पकड़ ही नहीं पाए. So I'm not telling the markets are bad. There is some problem in our system, in our strategies, what we discuss on Telegram group, and we are in the process of changing that strategy. Correct. So in this video, also in this analysis, I will try to point out some very uh, unique points that I think most of the traders or most of the investors are not talking about. We will discuss on this on daily and weekly time frame. बट फ्राइडे थर्सडे को अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, एंड फ्राइडे को मॉर्निंग में आई मेंशन इन दैट टेलीग्राम ग्रुप दैट सिंस इट्स फ्राइडे there will be no activity, there will be very less volume, and exactly that happened. If you see, right, with this move we opened around here at this point, and exactly no move came on Friday. So the anticipation was very much right, and due to because already on Thursday we have seen such a move, and अगर इसके बाद एक कंटिन्यूशन मूव आता तो ये रैली को मैं एक रियल रैली मानता. सिंस दिस हैज हैपेंड ऑन अ एक्सपायरी डे, आई डू नॉट टेक दिस एज अ रियल मूव, एंड इट माइट गेट रिटेस्टेड ऑन मंडे, राइट. इट माइट गेट रिटेस्टेड ऑन मंडे मीन्स जहाँ से ब्रेकआउट आया था 24,800, वहाँ पे एक मार्केट आपको रिटेस्ट करके दे सकता है, और यहाँ से फिर एक ऐसा मूव आ सकता है, right? But that we will discuss once we start discussing the view for the next week. But this is what exactly happened on Friday, and let's now do our normal analysis कि वीकली पे चल क्या रहा है. देखो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव आई है. यहाँ पे मार्केट ने द मार्केट्स ट्राइड टू रिवर्स द ट्रेंड एंड इट क्लोज बिलो प्रायर वीकली लो. बट ये जो गैप अप हुआ है यहाँ पे, दिस गैप अप, नो बडी एंटिसिपेटेड दिस गैप अप. और ये गैप अप हुआ क्यों? क्योंकि मंडे को न्यूज़ आई कि इंडिया और उसका पॉज हो चुका है, वॉर पॉज हो चुकी है, एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और यहाँ से ये न्यूज़ आई, एंड आई थिंक वी वेंट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स. सो दिस वीक essentially आप if you will see on the weekly basis, you will essentially see कि हाँ ठीक है पूरे वीक में इतना बड़ा मूव आया. But if you will see in daily time frame, you will get to see that how much volatile this week was. First we moved 900 points above, then we retraced more than 50% of this candlestick. यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप भी हुए होंगे. फिर यहाँ पे एक डोजी बनाया विच इज़ अगेन कंफ्यूजिंग. तो जितने यहाँ पे बुल्स थे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया, लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा निफ्टी में, वो यहाँ पे उनका ऑलमोस्ट प्रॉफिट उनको जीरो दिखा होगा. और यहाँ पे उनको लगा कि डोजी बन गई तो यहाँ पे मार्केट वीक हो जाएंगे और रिट्रेस दे वुड हैव एग्जिटेड हियर. देन अगेन मार्केट वेंट टिल 24,500, और वहाँ से सीधा मार्केट ने एक रैली की. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ लो ये क्या लेवल है, 25,126. सो फ्रॉम 500 ऑलमोस्ट 620 पॉइंट्स की रैली की सिंगल डे में. सो this week particularly it has been very very difficult for even for intraday traders, because intraday में इतना मूव आया नहीं. क्योंकि यहाँ पे आया, इफ इट हैज़ अ 400 पॉइंट गैप अप, उसके बाद जो हाल ट्रेडर्स का इस पूरे मूव में हुआ है उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती. nobody has the guts to long the market after a 400 point gap up, right? And the next day it opened gap down, 200 point gap down. It went till I think more than it is more than 50 percentage of this 500 point. So this week if you see on daily time frame, it has been very phenomenal and very volatile. So if you have not made any money in this week, it's okay, there is nothing wrong with you. It's with it's the market basically, and it's the market from many many times. क्योंकि ये पूरा फेस साइडवेज रहा, इसमें कोई बना नहीं पाया पैसा. यस, इंट्राडे ट्रेडर्स माइट हैव मेड सम मनी क्योंकि मार्केट ऊपर गया नीचे आया तो ठीक है आपने बना दिया. बट स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स ने कुछ पैसा नहीं बनाया. Even this week was very trending, but it was very very volatile. So it's truly perfect, क्योंकि आप अगर if you see on weekly, आपको weekly पे देखेगा कि भाई हाँ ठीक है यहाँ से यहाँ मूव आ गया, that's it. But the real picture comes when you go into daily. One day up, the other day down, then sideways, then again up. I mean, what kind of price action is this? So this week was very very volatile, and it's okay. And it's the best part if you have not lose,
if you have not lost the money in this week. अगर आपने पैसा नहीं खोया तो दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज आई थिंक जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया उनको यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा, उनको यहाँ पे प्रॉफिट इरोजन दिख रहा होगा, राइट? सो इट्स ट्रूली फाइन इफ यू हैव नॉट मेड मनी दिस वीक. सो अब वीकली पे एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस एक्शन एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट वीक. सो लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज हुआ है, द सेंटिमेंट फ्रॉम द प्राइस एक्शन परस्पेक्टिव इट इज़ अ नेगेटिव क्लोज. बट मार्केट ने पूरा रिवर्स कर दिया एंड मंडे को जैसे ही गैप हुआ तो जितने शॉट्स यहाँ पे क्रिएट हुए थे एवरी शॉट्स गॉट ट्रैप्ड एंड दे एग्जिटेड और उसकी वजह से रैली आई है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? सी अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो एक आपका प्राइम सप्लाई जोन था ये क्रॉस होके वीकली क्लोजिंग इसके अबव आ चुकी है. सो मार्केट के पास नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज 25,200. ये जो एक सप्लाई जोन था विच इज द वीकली टू वीकली कैंडल स्टिक्स 25,200 का पॉइंट. फर्स्ट टारगेट यही होगा अगर हम प्रायर वीकली हाई के ऊपर निकलते हैं. वो हम डेली पे देखेंगे कि प्रायर डेली हाई क्या है, बट फर्स्ट टारगेट विल बी 25,200. 25,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक और राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग होएगा, दैट विल बी टिल 25,500 एंड 26,000, राइट? To go negative we have to cross the 50 percentage. To go short or to go negative we have to cross the 50 percentage of this weekly candlestick which is roughly around 24,750. तो ये भी एक लेवल में मार्क करके दूंगा 24,750. It is a crucial level. Yes, below 24,750 there is a probability that markets might retest 24,500. Alright, so यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं प्रायर वीकली हाई एंड प्रायर वीकली लो. बट यहाँ पे मुझे ऑन अ ओवरव्यू बेसिस देख के मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा है. ज़बरदस्ती आप अगर यहाँ पे बोलोगे कि मार्केट्स माइट डू दिस, ऐसा कुछ करेंगे, येस दिस इज़ अ वैलिड प्राइस एक्शन, बट जब तक इफ अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट गेट अ गुड साइन दैट येस वी कैन शॉर्ट द मार्केट्स, until that we do will not short. Good sign क्या होता है? एक big red candlestick on the top, a big red candlestick, a big red candlestick after a good move. यहाँ पे मिला, but that was negated by a very very positive event. So when a country comes out of the war tensions, it actually is treated very very bullish, right? So यहाँ पे मुझे अभी वीकली बेसिस पे कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है. बायस बुलिश टर्न हो चुका है बिकॉज वी हैव क्लोज्ड अ वेरी वेरी बुलिश कैंडलस्टिक. वी माइट गेट अ वरी बिलो 24,750. 24,750 एक बहुत क्रूशल सप्लाई जोन था जो ये वाला जोन था. अगर इफ यू हाइड दिस ग्रीन कैंडलस्टिक 24,750 वाज अ वेरी वेरी गुड क्रूशल लेवल. सो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, मार्केट के पास सीधा पहला टारगेट ओपन अप होता है 25,200. सो ये एक लेवल मार्क करना 25,100 और 25,120. If we cross and sustain a daily candlestick about 25,120, so 25,200 will be the first target. 25,240 you 250 you can take as the first target. 25,250 भी अगर क्रॉस होता है तो 25,500 will be the next target for the markets. 25,500 पे we will it will be a 80% retracement. Or now I'll try to go on daily time frame and take you back in the history for a while. तो ये वाली जो एक बेरिश रैली थी फ्रॉम अक्टूबर टिल द लोज टिल आई थिंक दिसंबर एंड तक, उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट आया, इस पूरे रिट्रेसमेंट में, in this whole retracement, what traders and investors might have thought that yes the markets have turned very very bullish क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है यहाँ पे and the markets will cross another lifetime highs. but नहीं, यहाँ पे एक बिगर करेक्शन स्टार्ट हुआ, ये वाला पार्ट. So this is what we are anticipating, this kind of move what we are anticipating now which might happen. And if you very keenly see, तो ये वाला जो पूरा प्राइस एक्शन है this will look similar to the current price action, right? तो अगर आप ये पूरी रैली देखोगे तो ये पूरी रैली इसकी तरह एक सेम रैली रखती है. सो व्हाट द मार्केट्स माइट डू कि ये एक पूरी रैली आई है, इसका एक 70% 80% रिट्रेसमेंट एंड दिस माइट बी अ बिगर करेक्शन. और फिर मार्केट्स माइट डू लाइक दिस एंड दिस markets might go till 18,000 which is our final and initial plan. So markets might show a broad based correction in the month of June or in the month of July which we will essentially plan for it, right?
बट ये वाला शॉर्ट सबसे पहला हमने हमारी शुरू से स्ट्रैटेजी यही रही है दैट वी विल try to short the markets at 25,500 first. अगर 25,500 पे market does not give any negative sign, what is the negative sign? A close below prior weekly low. यहाँ पे हुआ था मार्केट मार्केट क्लोज बिलो प्रायर वीक लो, बट दैट वाज नेगेटेड बाय इवेंट, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता. बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मार्केट डज नॉट हैज नॉट गिवन एनी डेली ऐसे कुछ, मार्केट रोज ऊपर नहीं जा रहा है. Markets went up one day, it again came down the other day. Then it formed a doji, then it again went up. एंड ये जो ऊपर गया मार्केट, दिस वाज एक्सपायरी बेस्ड. सो मेरे को एक भी दिन ऐसा नहीं दिखा जो इवेंट विदाउट इवेंट बेस्ड रैली हो, विच इज़ अ हेल्दी रैली, मेरे को नहीं दिखा. Right, so in the momentum, in the positive momentum, in the positive bias, markets might extend the rally till 25,500. but अगर 25,500 पे नेगेटिव साइन नहीं मिलता तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्रिएटेड है which can take the market to 25,800 essentially, right? And 25,800 भी रुका तो अल्टीमेट टारगेट हुआ 26,000. but we will take a risk at 26,000 and short the market for the target of 21,000. ये वाला टारगेट 21,300, राइट? उसका प्राइस एक्शन का एंटिसिपेशन कैसे होगा? सिंपल, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि मार्केट्स विल शो अ प्राइस मूवमेंट. और ये वाली जो रैली होती है ना, ये अगर बहुत फास्ट है एंड इफ नो वन इज एबल टू कैप्चर दिस, then it means that it is a impulse rally and it will get retraced more sharply on the downside, right? Let's see if that happens, only time will tell. but what we can do is only prepare ourselves. So plan क्या है for the next week? If we cross above 25,120, longs initiate करना. 25,250 will be the first target. 25,250 के आसपास sustain करता है market for a day or for 2 day, 25,500 market easily achieve करेगा. Above 25,500 market should show some sign of profit booking or some sign of negative price action. अगर वहां पे भी नहीं दिखता, then 26,000 can be the target. बट आई थिंक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव 26,000 शुड बी द फाइनल स्पॉट. क्योंकि अगर आप खुद सोचो यहाँ पे मार्केट आएगा तो ये पहला हिट होगा इस सप्लाई जोन का, और इतना बड़ा सप्लाई जोन पहले हिट में नहीं निकलता. मार्केट को एक दो तीन ऐसे तीन चार हिट्स देने होंगे तब जाके 26,000 लेवल निकलेगा. एंड इवन इफ the markets are able to cross an all time high, yes, the markets might do a impulse move like this, but it will be a fake breakout. क्योंकि कोई भी एक सप्लाई जोन विच हैज बिकम अ रेजिस्टेंस, इट इज नॉट टेकन आउट, इट इज नॉट टेकन आउट वेरी इजीली, राइट? सो ये प्लान है, ये स्ट्रैटेजी है फॉर द बुलिश सिनेरियो. फॉर नेगेटिव सिनेरियो, आपको अगर मार्केट में शॉर्ट जाना है, सो यू हैव टू वेट टिल द लेवल ऑफ 24,750. 24,750 मार्केट ब्रेक करेगा. वीकली पे चलते हैं. प्रायर वीकली हाई हमने मार्क कर लिया विच इज 25,120, उसके ऊपर हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली है. प्रायर वीकली लो इज 24,400 और 390. सो शॉर्ट्स इनिशिएट कहाँ होंगे? इस 750 आप ले सकते हो, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन था मार्केट के पास. ये वाला एक, अगर इफ़ यू टेक दिस एज अ वेरी गुड सप्लाई जोन, दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड सप्लाई जोन. सो मार्केट्स अगर इस जोन के नीचे आते हैं इन द नेक्स्ट वीक, तो मार्केट्स माइट डू अ रिवर्स रैली लाइक दिस विच वी आर डिस्कसिंग, राइट? सो शॉर्ट किस लेवल के नीचे जाना है आपको? 24,750. 24,750 के नीचे एक डेली क्लोजिंग ऐसी हो गई, सो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट्स माइट रिटेस्ट 24,400 और 24,390 लेवल, राइट? और नीचे के लेवल्स, इफ द मार्केट्स आर क्रॉसिंग 24,390, द फर्स्ट लेवल विल बी 24,000. बिलो 24,000 we might see 23,500 and again 23,200 and 23,000. सो ये नेक्स्ट वीक का एंटिसिपेशन है. शॉर्ट कब जाना है, बेरिश कब जाना है? 24,750 के नीचे डेली क्लोजिंग आ जाए तब. इंट्राडे लॉन्ग, इंट्राडे पे क्या करना है, आई विल डिस्कस ऑन अर्ली एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. बट दैट इज दिस इज द आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक. कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे. नेगेटिविटी, स्लाइट नेगेटिविटी विल ओनली कम बिलो 24,750. आई थिंक दिस शुड बी क्लियर. बट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन मैंने आपको हिस्ट्री से कंपेयर करके बताया. ये वाला जो प्राइस एक्शन है वीकली में भी अगर आप देखोगे, इट वॉज अ शार्प वीकली रैली एंड इसने पूरे रिटेल कम्युनिटी को ये इंप्रेशन दे दिया कि येस मार्केट्स माइट डू दिस, जो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है. बट इट इज़ अ वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मार्केट्स यहाँ पे सस्टेन कर जाए, यहाँ पे करके ये निकल जाए. क्योंकि
ऐसा कुछ फंडामेंटल इकोनॉमी में या अर्निंग्स में चेंज हुआ नहीं है कि मार्केट बहुत बुलिश हो जाए. This is a rally in which the traders can make some money, but essentially it will be a better exit for FIIs like this. Correct? I hope you have gotten the context what I'm trying to say. Let's go on daily time frame and daily पे डिस्कस करते हैं. देखो प्रायर डेली है. अच्छा वीकली पे एक पॉइंट और मैं आपको आई वांट टू डिस्कस. इफ वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 25, क्योंकि बहुत ये वीक भी ट्रेंडिंग था, ये वीक भी ट्रेंडिंग था. इफ वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 25 150 ऑन द अपसाइड और 25 टू 100, अगर हम 25 टू 100 टच करके आ गए तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट मेक एन इनसाइड कैंडल वीकली. बट ये मेरे को थोड़ा कम प्रोबेबिलिस्टिक लग रहा है क्योंकि मार्केट्स आर नॉट लुकिंग नेगेटिव एज ऑफ नाउ. तो प्रायर वीकली हाई के ऊपर निकलेगा विच इज 25 120, 25 250 विल बी द टारगेट. लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक साइन ऑफ कंफ्यूजन लग रहा है अभी भी, क्योंकि जितनी भी रैली आई इधर इट वाज इवेंट बेस्ड और एक्सपायरी बेस्ड. करेक्ट. सो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा बेस बनाया, तो ये एक बेस मान के हो सकता है मार्केट्स माइट गो मोर अबव. तो उसका सबसे पहला साइन क्या होगा कि मार्केट शुड क्रॉस 25 120 एज इट इज डिस्कस्ड. तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में अभी एज कोई नेगेटिविटी नहीं है. द ओनली नेगेटिविटी विच विल कम, इट विल कम बिलो 24 750. सो लेट्स गो ऑन अर्ली टाइम फ्रेम. एंड अर्ली टाइम फ्रेम पे एक बार डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग ऑन मंडे कैसे आप ट्रीट कर सकते हो मार्केट को. अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है 25 120 एंड 24 750, इस पूरे रेंज में ट्रेड नहीं करनी है आपको, क्योंकि यहाँ मार्केट वॉलेटाइल रहेगा. ओनली एंड ओनली इफ 24 750 इज ब्रेकिंग, इंट्रा डे शॉर्ट्स इनिशिएट होंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 24 500 और 24 390. इफ 25 120 इज बीइंग क्रॉस्ड तो पहला टारगेट 250 होगा. ये एक इंट्राडे मूव मिल सकता है. सो एन अर्ली क्लोज अबव 25 120, एक अर्ली क्लोज यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से आप इस लेवल तक का यहाँ पे और इस लेवल तक का एक लॉन्ग एंट्री क्रिएट कर सकते हो टिल 25 500. ऑलराइट. बट अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो वेट करो ये रेंज. अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो ये जितने भी यहाँ पे लॉन्ग्स क्रिएटेड हैं वो एक प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे. बट प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम आएगी, हल्की सी आएगी, एंड द मार्केट्स माइट डू अनदर राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग. इफ द मार्केट्स ओपन वेरी वेरी बिग गैप डाउन, यहाँ पे मेरा अगर बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलता है एंड इफ द मार्केट सस्टेन बिलो 24 750, देन एंड ओनली विल थिंक. बट नीचे मार्केट जितना भी जाएगा मार्केट को हर लेवल पे सपोर्ट मिलेगा. सपोर्ट कहाँ है मार्केट के पास? पहला सपोर्ट मार्केट के पास ये है. आई ट्राई टू मेक दिस एज अ ग्रीन ऑब्जेक्ट सो दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज मोर क्लियरली. पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट मार्केट के पास ये है, तीसरा सपोर्ट मार्केट के पास ये है. ये तीन बिग सपोर्ट्स है मार्केट के पास. ऑलराइट. तो नीचे जब भी मार्केट आएगा, तो मार्केट अगर आएगा तो यहाँ पे एक हो सकता है बेस बना है, तो ये एक अनदर बाय एंड डिप्स एंट्री हो सकती है. तो ये जो लेवल है 24 750, इसके नीचे ही अगर मार्केट सस्टेन करता है, या इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई डिमांड जोन्स, तो ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है मार्केट के लिए. अनटिल अनलेस मार्केट डज नॉट ब्रीच दैट, मार्केट शॉर्ट नहीं जाएगा. ये देखो. ठीक है. सो इफ द मार्केट्स ट्राई टू ब्रेक दिस कॉग्लोमेरेट दिस जोन, तो मार्केट के पास ये एक इजी मूव है. फिर यहाँ पे मार्केट दो बार हिट दे चुका है, तो ये तीसरा हिट आएगा यहाँ पे 24,000 का. एंड आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ हिट में मार्केट विल ब्रेक 24,000 लेवल. ये 24,000 लेवल इज इफ इट इज गेटिंग ब्रोकन, 23,000 वुड बी द टारगेट. ये जो नेक्स्ट आपका डिमांड जोन है. ऑलराइट. आई होप द प्राइस एक्शन इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस. सो लेवल्स पे मैंने ये आपको सप्लाई जोन्स, डिमांड जोन मैंने आपको मार्क करके दे दिए. सप्लाई जोन्स ऊपर क्या आएंगे? 25 500 एंड 25 600. सिर्फ दो सप्लाई जोन्स हैं. अगर 26,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये एक इम्पल्स रैली होगी जो हमने डिस्कस की थी, एंड मार्केट्स माइट गो टू 26 500 एंड 27,000. फिर वो एक और प्राइस एक्शन बनेगा जो हम प्राइस एक्शन वी frequently discuss, that let's suppose this is a trend. तो अगर मार्केट यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे ऑल टाइम हाई को, बट ये सस्टेन नहीं होगा एंड इट विल फॉर्म एन एम पैटर्न. तो एम पैटर्न दो तरह के होते हैं. एक ये वाला पैटर्न होता है और एक
ये एक्सटेंडेड एम का पैटर्न होता है जिसमें ये वाला जो लेवल ब्रेक होता है, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, दिस इज अ लिक्विडिटी ट्रैप, एंड फिर मार्केट रिट्रेस करते हुए नीचे आता है। तो दिस इज दीज आर टू पॉसिबिलिटीज द मार्केट्स माइट डू, ऑलराइट ट्रेडर्स। एंड अगर आप यहाँ पे ग्लोबल मतलब एक ओवरव्यू बेसिस पे देखोगे तो आपको देखो क्या दिखेगा, मार्केट्स माइट मेक दिस एज एन एम पैटर्न, और ये जब एक एम पैटर्न ब्रेक होएगा यहाँ पे एट द ब्रेक ऑफ 22,500 या 21,750, तो यहाँ पे ये वाले लेवल्स खुलेंगे नीचे 20,000 एंड 18,000। ठीक है, ये एक जनरल ओवरव्यू बेसिस है मार्केट का। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। हमने इंट्राडे बेसिस भी डिस्कस कर लिया 15 मिनट्स पे, मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आपको मैंने डिमांड जोन दे दिए हैं। शॉर्ट बेरिशनेस आएगी 24,750 के नीचे ही। इंट्राडे बुलिश एंट्री आपकी कब बनेगी, 25,120 के ऊपर। ठीक है, ये हमने क्लियर हो गया, हमारी क्लैरिटी। लेट्स स्ट्रेट गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश प्राइस एक्शन है यहाँ पे। एंड ये एक बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है जो मार्केट ने यहाँ पे भी दिखाया था और मार्केट यहाँ भी दिखा रहा है। सो बैंक निफ्टी हो सकता है एक ट्रैप करके, जैसे ये ट्रैप किया था मार्केट ने, ये ट्रैप करके मार्केट बैंक निफ्टी माइट डू 60,000। तो ये बैंक निफ्टी का मेरे को एक अट्रैक्टिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, एंड रादर देन निफ्टी, बैंक निफ्टी माइट डू अ गुड प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीक। सो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड विल इरेज दीस लेवल्स। ठीक है, अब वीकली में 5 EMA के नीचे क्लोज एक बार भी नहीं दिया मार्केट ने। सो वीकली में आपके पास सिर्फ एक क्रूशियल लेवल है 55,500। 55,500 क्रॉस करेगा, मार्केट विल डू ऑल टाइम हाई 56,000 अगेन। 56,000 के ऊपर 57,000 इजीली अचीव होएगा, एंड 57,500 मैक्सिमम लेवल 57,500 आई एम एक्सपेक्टिंग। फॉर द डाउन साइड 54,500 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल टू गेट ब्रीच्ड। अगर मार्केट 54,500 ब्रीच करता है तभी मार्केट में बेरिश जाना है, एज इन बैंक निफ्टी में बेरिश जाना है। बट जो बेरिशनेस स्टार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी विद ब्रेक ऑफ 55,000, क्योंकि दैट इज द 50% ऑफ दिस वीकली ग्रीन कैंडल। अगर 55,000 ब्रेक होता है और एक डेली क्लोज आता है बिलो 55,000, then you can trade till 54,500. But if 54,500 is also broken, then 54,000 will be the first target, 53,500 will be the second target, and the third target will be 53,000. That's what I'm expecting in Bank Nifty. डेली में मुझे एक बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है विद फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसको हम पोल बोलते हैं और जिसको हम फ्लैग बोलते हैं। तो ये अगर ब्रेक होता है यहाँ से, तो जितनी पोल की लेंथ है, लेट्स सपोज 50,000 से 6,000 पॉइंट्स का एक और एक्स्ट्रा मूव आएगा। सो 61,000 का वही मूव जो हमने वीकली पे डिस्कस किया है, 61,000 60,000 तक का एक मूव इजीली अचीवेबल है इन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी जब एक ट्रेंडिंग मूव लेता है तो वो किसी का वेट नहीं करता, इट मूव्स वेरी रैपिडली, और आप इस मूव को कैच भी नहीं कर पाओगे। सो इफ़ यू वांट टू ट्रेड बैंक निफ्टी, जस्ट वेट फॉर 56,000 to get cleared. Above 56,000, 57,000 and 58,000 are very very easy levels. Let's go to 15 minutes time frame and discuss it. अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव खुलता है तो बैंक निफ्टी के पास नीचे एक डिमांड जोन है ये वाली, विच इज़ 53,500। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव खुलता है, सो फॉर मंडे इंट्राडे सेल ऑन राइज ट्रिगर हो सकता है, विच मार्केट्स कैन टेक, विच फॉर विच बैंक निफ्टी प्राइस कैन गेट ट्रिगर ड्रैग टू 54,000। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमें शॉर्ट किसके नीचे जाना है, 55,000 के नीचे। 55,000, प्लीज लीव द रेंज ऑफ दिस 500 पॉइंट रेंज, लॉन्ग्स अबव 55,500 एंड शॉर्ट्स बिलो 55,000, राइट? So alright, so I hope now the price action and how we will rate for the next week is clear. Let's quickly go to the OI data and see what is the change in OI for Friday and the total open interest. So for Nifty, right, the change in OI, almost 3 crore shorts have been added and on Friday, and they are being carried over. And in change of that, in contrast of that, only 1.24 crore shorts have been added. So this is a little bearish bias, right? And if you even see the total open interest, we have more number of call OI, and if you can see, there is an increase on the upper levels 25,100. So out the money, people have gone out the money and written the calls, and the bias is little bit bearish.
Not that much bearish, but yes, of course, a little bit bearish. Let's see Bank Nifty's change in OI. Almost Bank Nifty's change in OI on Friday is a little bit bullish. Almost 2.5 lakh of longs addition, and only in contrast of that, only 1.5 lakh of shorts addition. If you see total open interest, the PCR is almost 1, which gives us with a neutral bias. That Bank Nifty will not, till the end of the month of May, Bank Nifty is not expected to make a good move, right? If you look at other indexes, IT, if you look at IT, IT is looking little bit dicey to me because it has retested its 200 DMA, and it is the first retestment of 200 DMA. So in a bearish cycle, generally the first retestment of the 200 DMA, the market follows a pattern like this. All right, so be cautious in Nifty. If Nifty IT is breaking the level of essentially 37,700, then we might see a fall to 36,000. So IT sector can weaken down in the next week. If you take a look at the metal sector is looking very much strong in comparison to even Nifty IT, because Nifty IT has not crossed 200 DMA, but metal has crossed and it has closed above 200 DMA as well. Every other DMA it has crossed, right? So keep 9300 level on focus. If Nifty metal crosses this, Nifty metal might do good in coming weeks. Nifty auto, if you take into consideration, Nifty auto is the best sector, is the most bullish sector as of now. It has crossed all the resistances, and the next resistance is 24,200, is at 24,200. If 24,200 gets crossed, 25,000 and 26,600 will be on the way. So this was everything regarding how you can trade the markets next week, traders. If you have liked the video, leave a like, leave a comment. If you have any doubts, any concerns, you can mention it in the comment section, comment below. All right, traders, stay safe in the market. Cheers.